آپ خاص مہرولی کے ہیں یا کہیں کہیں اور جگہ کے رہنے والے ہیں؟ ہم بہار کے رہنے والے ہیں، بسنت کنج علاقہ ہے، دارالعلوم رحیمیہ، بسنت کنج قلعہ اچھا اچھا، مہرولی شریف کے بازو میں ہے، کہاں کے؟ مہرولی شریف کے بازو میں ہے اچھا، محلہ، علاقہ حلقہ لگتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ سب دین کے رہبر ہیں، جتنے علماء کرام ہیں سب دین کے، اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سب ہے دین کے رہبر ہیں۔ اور آپ بھی؟ الحمدللہ ہم بھی خادم ہیں ہم تو کیا تو ایک بات آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ کیا بتایا آپ نے؟ قاری پھول حسن ہے قاری پھول حسن عارف الحسن صاحب جی جی۔ نعمانی۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ اشرف علی تھانوی صاحب کو جو مولانا کہہ رہے ہیں، جی۔ کہہ رہے ہیں آپ کی وہ عالم دین ہے، جی کیا آپ نے ان کی کتاب حفظ الایمان پڑھی نہیں کیا؟ جی، کیا آپ نے ان کی کتاب حفظ الایمان نہیں پڑھی کیا؟ جس میں نبی کے علم غیب کو انہوں نے جانور سے تشبیہ دیا، کیا آپ کو پتہ نہیں کیا وہ؟ یہ تو میں نہیں دیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ جی، اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ اعلیٰ حضرت بھی اپنے جگہ پہ صحیح ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا عالم، بخاری شریف میں ہے، حدیث پاک میں ہے، عالم وہ ہے کہ عالم پر فرض ہے کہ ہر اٹھتے فتنے کا سدباب کرے، اس کا رد کرے۔ اور فرمایا اگر عالم اپنا حق ادا نہیں کرتا تو فرمایا وہ عالم دین نہیں بلکہ وہ حدیث پاک کے روشنی میں منوا شیطان ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ عالم دین ہیں، رہبر کہہ رہے ہیں، آپ اشرف علی تھانوی کو مولانا کہہ رہے ہیں، بالکل ہے۔ جس نے حفظ الایمان میں لکھا نبی کے علم غیب کو تشبیہ دی جانوروں سے، پاگلوں سے۔ آپ بتائیں گے تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں۔ حفظ الایمان تو ہر دارالعلوم مدرسے دیوبندیوں کے سارے مدرسوں میں۔ اب قاسم نانوتوی کو آپ نہیں جانتے، اب جانتے تو کہہ رہے ہیں وہ مولوی صاحب ہے، کیا آپ کو پتہ نہیں انہوں نے ان کا عقیدہ کیا، ان کو کفر کا فتویٰ کیوں لگا ہوا ہے؟ حسام الحرمین شریف نہیں پڑھی آپ نے؟ ہم کتاب نہیں پڑھی، لیکن کتاب نہیں پڑھی؟ سب عالم ہیں۔ کتاب نہیں پڑھی، سب عالم ہے تو سب سے بڑا تو ابلیس ہے، پھر وہ عالم نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ ہمارے نگاہ میں سب عالم دین ہیں، تو سب کیسے ہو سکتے ہیں حضرت؟ پڑھے ہوئے ہیں، سب عالم دین ہیں، سب دین کے رہبر ہیں، حق جنہوں نے حق کی تبلیغ کی، سب دین کے رہبر۔ تو یہ حفظ الایمان میں جو اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، اگرچہ بقول وہ زید ہماری نگاہ سے نہیں گزری ہے، تو عالم ہیں آپ پر، آپ پبلک میں جاتے ہیں، آپ پر تو فرض ہے۔ ہمارے اوپر کیا فرض ہے؟ ہم قاری ہیں، حافظ قاری ہیں۔ تو کیا صرف آپ کے اوپر یہ فرض ہے خالی کہ چندہ کریں خالی؟ ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ دین کی بات بھی سمجھاؤ۔ تو یہ دین کی بات، دین کی عقیدہ کلمہ بھی سمجھاؤ۔ عقائد پہلے، عقائد کی بات پہلے کہ مسائل کی بات پہلے؟ فرض کیا ہے پہلے؟ مسائل بھی پہلے دونوں فرض چیز کیا صحیح ہے؟ کرو، پہلے کیا فرض ہے؟ عقائد یا مسائل؟ دونوں چیز صحیح کرو، عقائد بھی صحیح کرو اور مسائل بھی یاد رکھو، ہاں دونوں آپ کو صحیح کرنا آقا نے پڑے گا۔ سب سے پہلے کیا دیا ہے؟ دونوں چیز آپ کو، ہمارے آقا کا جو ہمارے کیا نبی نے ہے؟ سب سے پہلے امت کو کیا دیا؟ امت کو یہ دیا سب سے پہلے اپنے جو ہے اپنے مسائل نمونہ یا دکھا عقائد؟ کے، مسائل یا نمونہ عقائد؟ دکھایا کہ جو ہمارے پیروی کار ہوگا وہ ہمارے صحیح امتی ہوگا۔ آپ نے مشکوہ شریف کی حدیث پاک نہیں پڑھی؟ دیکھیے آقا کی جو آقا سنت فرماتے ہے، ہیں کہ جو ہے جو میرے اور میرے صحابہ کا طریقے پر ہوگا وہ صحیح ہوگا، بالکل جو ان کے عقیدے پر ہوگا وہ بالکل صحیح صحیح ہوگا۔ ہے۔ تو کیا کسی صحابی کا عقیدہ ہے کہ نبی کا علم غیب ایسا ہے جیسا جانوروں کا ہے؟ ایسا کچھ کیا نہیں، ابو بکر ایسا کچھ سرکار نہیں نے ہے، کہا یا خلفائے راشدین نے یا اہل بیت ایسا کچھ اطہار نے؟ نہیں ہے۔ مولانا صاحب سوچیے، آپ نہیں عالم دین آپ اپنے آپ کو کہہ لیں، آپ سوچیے آپ کی کتنی علم کی کمی ہے۔ وہ سب عالم دین ہے ہمارے نگاہ سب میں، کیسے؟ ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہے نبی کا علم غیب جانور کی طرح ہے، وہ عالم دین کیسے ہے؟ جو عالم دین کو غلط کہے وہ خود غلط ہے۔ اور عالم دین کو عزت کس کے صدقے میں ملی؟ آمنہ کے لال کے صدقے میں ملی نا۔ بالکل بالکل، تو نبی آمنہ کے لال کو یہ بول رہا ہے وہ بلکہ اللہ کے نبی کہ نے فرمایا کہ ان العلماء وراثۃ الانبیاء، علماء حق علماء ورثۃ الانبیاء، وہ جو ہے نبی کے وارث ہوا اور کرتے۔ دوسری طرف کیا فرمایا؟ اللہم اعوذ بک من شر علم والعلماء، اے اللہ میں ایسے عالم سے پناہ مانگتا ہوں جو میری امت کو گمراہ کریں گے۔ یہ بھی پہلو بتائیں گے نا آپ؟ بالکل تو وہ عالم سے مراد کون ہے؟ بالکل، تو وہ عالم سے مراد کون ہے؟ وہ عالم جو سنت رسول کے خلاف کرتا، نہیں، وہ عالم جو حق جانے، قرآن اور حدیث کے خلاف کرتا، وہ ہے، وہ شر ہے۔
तिरमिज़ी शरीफ में आया, इमाम गज़ाली फरमाते हैं, सुनिए हज़रत, इमाम गज़ाली फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक नकल करते हुए अपनी किताब में वो फरमाते हैं कि आका ने फरमाया कि बरोज़ महशर कुछ लोग जब कब्र से उठेंगे तो उनकी शक्ल बंदर और सूअर जैसी होंगी। सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे? आका ने इरशाद फरमाया वो लोग होंगे मेरी उम्मत के वो बड़े बड़े आलिम होंगे जिन्होंने हक़ जाना, हक़ समझा, सब कुछ जाना, मगर जानकर कुछ ना बोले, मेरी महबूब की उम्मत गुमराह होती रही है, वो आलिम होंगे। तो अब आप बताइए, आपने अशरफ अली थानवी की हिफ्ज़ुल ईमान नहीं पढ़ी, इस्माइल देहलवी की सिरात मुस्तकीम भी नहीं पढ़ी होगी, जिसमें कहा कि ज़िना के वसवसे से अपनी बीवी से हमबस्तरी का ख्याल बेहतर है, मगर नबी का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो बैल और गधे से बदतर है। अब आप बताइए, उसी मौलवी इस्माइल देहलवी की किताब तकबतुल ईमान में लिखा कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी चीज़ का इख्तियार नहीं। उसी किताब इस्माइल देहलवी की तकबतुल ईमान में लिखा सफ़ा नंबर 115 पर कि नबी हो या वली हो, उनकी कब्र में क्या होगा उनको खुद अपना हाल नहीं मालूम। अब बताइए कि नबी को नहीं पता है कि हमारी कब्र में क्या? कब्र के बारे में दो ही तो हैं, या तो बंदा अगर अच्छा गया है तो जन्नत के क्यारियों में से या तो क्यारी होगी, बंदा बुरा गया है अगर तो जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा होगी। तो क्या हम अपने आका के लिए क्या उम्मीद लगाएं, उनकी कब्र का आलम क्या होगा? अबे नबी के सदक़े में तो सबको जिसको मिलेगी जन्नत मिलेगी। तो वो ये इस्माइल देहलवी ये जो कह रहा है, इस्माइल देहलवी जो ये कह रहा है कि नबी को नहीं मालूम उनकी कब्र में क्या होगा, ख्वा अंबिया हो या औलिया, किसकी कब्र में क्या होगा उनको अपना हाल मालूम नहीं। तो जब नबी को अपना हाल नहीं मालूम तो कैसे फरमाया सिद्दीक तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो। भाई 12 असरे मुबस्सरा जमात जिसको कहा गया, फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, क्यों कहा गया? जब नबी को अपना ही हाल नहीं मालूम। अब आप बताइए, आप आलिम दीन अपने आप को कह रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता है, देखो मैं भी एक शायर हूँ, बड़े बड़े जलसों में चैलेंज के साथ बोलता हूँ। और मैं आला हजरत का खाली ज़बान से नाम नहीं लेता हूँ, मौलाना साहब यहाँ से मानता हूँ आला हजरत को, महरुल शरीफ का नाम यहाँ से नहीं लेता हूँ, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी को यहाँ से मानता हूँ। अब ये बताइए, ख्वाजा महरुल शरीफ का आपने नाम लिया, और मैं क्या आपको पता नहीं देवबंदी ने अपनी किताब में लिखा कि जो अल्लाह जो मज़ारों पर जाते हैं अगर वो इतना बड़ा गुनाह करते हैं जैसे किसी को मोमिन को कत्ल कर देना या किसी मुस्लिम लड़की के साथ जिना बिल जबर करना। ऐसा कुछ नहीं लिखा किताब में, किसने लिखा? आपको कुछ नहीं पता, आपने इस तकबतुल ईमान नहीं पढ़ी, आपने हिफ्ज़ुल ईमान नहीं पढ़ी, आपने बराइन क़ातिया भी नहीं पढ़ी होगी। हमने तो नहीं देखा है। मौलाना साहब आलिम पर फ़र्ज़ है कि अपना इल्म ज़ाहिर करे। फिर आपकी नज़र में आलिम किसको कहते हैं? हमारे निगाह में सब आलिम, जो आलिम नहीं तो आलिम किसको कहते हैं आपकी नज़र में? हम तो जो आलिम का डेफिनेशन आप क्या समझते हैं? आलिम से मुराद क्या है? जानने वाला। तो वही जानने वाला आलिम से मुराद है। तो इब्लीस जानने वाला था कि नहीं था? मसले मसाइल हर चीज़ को नहीं क्या कह रहा हूँ हज़रत मौलाना साहब, इब्लीस जानने वाला था कि अनजान था? इब्लीस तो बहुत जाना। तो फिर आपकी नज़र में वो भी आलिम होगा? वो थोड़ी नहीं, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? फरिश्तों का सरदार था। अच्छा, लानत क्यों बरसती? लानत क्यों बरसती? लानत इसलिए बरसा कि अल्लाह के अहकाम को ठुकराया। अल्लाह के अहकाम में अल्लाह ने अहकाम करने को क्या बताया था, क्या कहा था? अल्लाह के अहकाम को ठुकराया, इसलिए अल्लाह ने कहा क्या था उस टाइम जो ठुकराया? उसने नमाज से इनकार करा क्या? नहीं। उस टाइम पूछेगा, उस टाइम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो है मुजस्समा को बनाया जी और सजदा करने के लिए कहा जी, तो उसी वक्त ने इनकार किया। अब बस यहीं पे रुकिए, आप बात को समझिए मौलाना साहब। बड़ा मुंह बड़ी छोटा मुंह बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। आदम के नबी मेरे नबी हैं कि नहीं है? सबके नबी हैं। सबके नबी मेरे नबी हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। इब्लीस उस वक्त तौहीन करने इनकार करने से पहले जन्नती फरिश्तों का सरदार था कि नहीं था? एकदम था। जन्नत में हूरें उसको झूला झुलाती थी कि नहीं झुलाती थी? तमाम फरिश्तों का आलिम था कि नहीं था? सब कुछ था, लेकिन आदम की तौहीन करने पर उसको जन्नत से बाहर करा गया। तो आदम की तौहीन करने वाले को जन्नत का फरिश्ता अगर जन्नत का सरदार भी हो, तब भी उस 1600 करोड़ बरस की इबादत भी हो, सजदा भी हो, तब भी उसको बाहर कर दिया जाए। तो फिर जो अशरफ अली थानवी जिनकी उम्र 60 साल,
जो आदम के भी नबी हैं, मेरे नबी, उनकी तौहीन करने वाले जन्नत में कैसे चले जाएंगे? आप कैसे आप आलिम कह रहे हो? कौन तौहीन किया? अशरफ अली हिफ्जुल ईमान नहीं किताब बता रहा हूँ हमने तो नहीं पढ़ा। मैं आपको, डंके की चोट पे चैलेंज, लेकिन बिल्कुल। नहीं किया। मेरा नंबर लीजिए, मेरा नंबर लीजिए, आप मेरे नंबर लीजिए और आप बताएं तो मैं यही किताब दिखा देता हूँ। अगर आप यहीं पे हुक्म सुनाएं तो मैं यहीं पे किताब दिखा देता हूँ। बोलिए। नहीं, हुक्म सुना यहाँ के, मैं देख लूँगा ना। ये मेरा ऊपर वाला नंबर है, जो बड़ा आलिम है उससे बात कराइएगा। ये क्या नाम है? अशरफ अली था, अजीमुशान रज़ा मेरा नाम है। यूट्यूब पे मेरा नाम मिल जाएगा आपको। देखिए अशरफ अली थानवी हो गया, अच्छा, यहाँ पे देखिए अजीमुशान ऊपर, अशरफ अली थानवी, मौलवी कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेडवी, जिसने माज़ल्ला शैतान के इल्म को ज़्यादा कहा, हुजूर के इल्म को कब कहा। और चौथा मौलवी कासिम नानोतवी। इन चारों पर बरेली के आलिम ने नहीं, अरबो अजम के आलिम ने हुस्सामुल हरमैन शरीफ में कुफ्र का फतवा दिया और फरमाया मन शक्का फ़ी कुफ्र ही वाज़ा वही फ़कत कफर। फरमाया ये ऐसे काफिर है जो इनके कुफ्र में शक करे वो खुद काफिर है। अब इस फतवे में आप अपना चेहरा देखें इस आईने में, तो जो आप जिनको आप मुसलमान कह रहे हो, अरबो अजम के उलमा कह रहे हैं कि वो काफिर हैं, कि इनके कुफ्र में अगर कोई शक करे, आप तो शक तो छोड़ो, आप तो इनको आलिम कह रहे हैं, तो आप उनके फतवे को नहीं मानते, अरबो अजम के आलिम को। अब आप बताइए, तो फिर इब्लीस क्यों नहीं है? फिर इब्लीस नहीं है, इब्लीस तो है, इब्लीस क्यों नहीं आलिम है? लानत दरगाह की है, वो है। तो जब एक बात बताइए, जब आदम की तौहीन करे तो लानत का तौक डाल दिया जाए, और आदम के नबी इमामुल अंबिया हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तौहीन करे तो वो जन्नत में कैसे जाएगा? वो तो तौहीन कर ही नहीं सकता। तो वो कैसे आलिम, क्यों नहीं कर सकता? क्यों महफूज अनिल खता है क्या ये? जो तौहीन करेगा वो आलिम ही नहीं होगा। तो नहीं, तो नबी को ये तौहीन- ये नबी बताइए, और सहाबी को महफूज अनिल खता है क्या ये? मासूम है क्या ये? सहाबी को हमारे अल्लाह के नबी ने फरमाया, हमारे सहाबी जैसे सितारों के माने। जी, आगे आगे भी कुछ फरमाया, इक्तदा कर लोगे, इसकी पैरवी कर लोगे, हिदायत पा जाओगे। ठीक है, अब आप बताइए किसी एक सहाबी तक क्या ये अकीदा है कि नबी मुर्दा है? नहीं है। तो क्या तकबतुल ईमान में इस्माइल देलवी ने नहीं लिखा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए? नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, साफ साफ जुमले में आपको दिखा सकता हूँ तकबतुल ईमान में। और ये किताब को देवबंदी मदरसे वाले कहते हैं, उन्होंने जब किताब लिखी तो उन्होंने कहा ये किताब इतनी अफजल है, इसका पढ़ना और रखना आईने इस्लाम है। आप बताइए कुरान का पढ़ना क्या आईने इस्लाम है? नहीं। तो कुरान का पढ़ना आईने इस्लाम नहीं है, तो फिर तकबतुल ईमान कैसे आईने इस्लाम हो गई? किसी ने अरे आप आईने इस्लाम का मतलब ही बता दीजिए क्या हो गया? आप समझे ही नहीं। मौलाना साहब मुझे लगता है आप चंदे से आगे निकले ही नहीं, वल्लाहु आलम। सहाबा इकराम ने नबी के ज़माने मस्जिद नबवी से दाढ़ी पकड़ पकड़ कर मुनाफिकों के बाहर निकाला कि नहीं निकाला? तो जब आप एक बात बताइए, जब एक बात आप ये बताइए, जब नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाले जब गुस्ताखी करके गलत हो सकते हैं, तो अशरफ नहीं हुए? मुनाफिकों को पकड़ पकड़ के नहीं निकलवाया आका ने? तो क्यों निकलवाया? पहले क्यों मुनाफिक कहते किसको? जो ऊपर से है, ईमान लाया अंदर, राइट, अंदर से जो राइट। अशरफ अली थानवी ने ऊपर से, तारिक जलील ने ऊपर से, तारिक मसूद ने ऊपर से, जाकिर नालायक, तो क्या जाकिर नायक को भी आप मानते हो? उसने क्या कहा मुंबई के मैदान में, आपको पता नहीं? तकरीर आप अभी सुना सकता हूँ। उसने कहा सबको तो छोड़ो बाबा और उनको संतों को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस ज़माने में मानना हराम है। मैं आपको अभी सुना सकता हूँ। अब आप बताइए क्या ये तौहीन नहीं आका की? अभी हिंदू कर दे तो जुलूस निकालते हो। देख लीजिए हज़ारों के मजमे में। अब ये बताइए, ये जो इस समय में ये तालियां बजा रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो तालियां बजा रहे हैं? ये दाली टोपी वाले। मोहम्मद को मानने वाला क्या बताया? मोहम्मद और लोगों को, बाबा संतों को तो छोड़ो, इस ज़माने में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते, उनको भी मानना हराम है। मैं नहीं कहता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसके जुमले दोहरा रहा हूँ, समझे मौलाना साहब? अब आप बताइए। महरुल शरीफ का नाम लेकर आला हज़रत का शेर याद आया मुझको। आला हज़रत फरमाते हैं शहद दिखाए शहर पिलाए, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ईमान एक नूर है,
ये नूर ऐसे ही तो गायब हो रहा है। क्या साहबा ने कभी जमातें निकाली 40 दिन के चिल्ला में? क्या अशरफ अली थानवी की आपने वो किताब भी नहीं पढ़ी जिसको क्या कहते हैं, वो क्या उसका नाम है यार, फैजान सुन्नत नहीं, एक वो दूसरी किताब है उसकी, बहुत मशहूर किताब है उसकी, जिसमें अचार जने क्या फला 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 सब उसमें है। उसमें उससे पूछा गया, किसी ने कहा एक शख्स जो है माँ से जिना करता था, किसी ने कहा भाई क्या बदतमीजी करता है, माँ के साथ जिना कर रहा है, ला हौल वला कुव्वत। तो उसने जवाब क्या दिया, सामने वाले ने कहा कि जब मैं पूरा माँ के अंदर था तो कुछ हर्ज नहीं, अब मेरा थोड़ा सा जुज अंदर गया तो क्या हर्ज है। तो अशरफ अली थानवी ने क्या जवाब दिया, अशरफ अली थानवी को चाहिए था लात मार के उसको बाहर कर देते सवाल करने वाले की, ला हौल वला कुव्वत, शैतान मरदूद, माँ के साथ जिना करके मुझसे फतवे लेने आया। ये नहीं कहा, बल्कि कहा अक्ल के फतवे से ये भी जायज़ है। यह है देवबंदी मजहब। कैसी बात? अरे ये किसमें लिखा हुआ, कौन सी लिखा हुआ? ये आपको मैं भी बता रहा नाम लिख करके हूँ, बैठे यहीं पे देखिए, मैंने अपना नंबर दिया, इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा। ये प्रूफ है आप किताब के नाम बाइस्ती जेवर, बाइस्ती जेवर पढ़ी आपने? लेकिन हमारे बाइस्ती जेवर सफ़ा दे रहा हूँ, लेके जाइए साथ में, ढूंढिएगा जाके, अब फ़ोन जरूर करिएगा, दे रहा हूँ मैं आपको सफ़ा बाइस्ती जेवर का। और कोई शख्स जो है गू खाया करता था, ये गूखोर मुजद्दिद की बात कर रहा हूँ मैं, देवबंदी जिसको मुजद्दिद मानते, उसने कहा किसी ने ला हौल वला कुव्वत, तू क्या करता है, गू खाता है? तो उसने पता क्या कहा, उसने कहा जब पूरा ही मेरे निकाल रहा हूँ कि जब मेरा पूरे पेट के अंदर था तो कुछ नहीं, थोड़ा खा लिया तो क्या हो। तो अशरफ अली थानवी साहब ने कहा अक्ल के फतवे से ये भी जायज़ है। दिखाइए सिर्फ जुबान से नहीं दिखा रहा हूँ ना, अरे सब दिखा रहा हूँ मौलाना साहब। ये जामिन अली जलालाबादी जो रंडियों को मुरीद करते थे, किताब का नाम तस्कीतुर रशीद, सफ़ा नंबर 242 जिल्द, मुसन्निफ का नाम आसिक इलाही मेरठी, ये रंडियों को मुरीद करते थे। और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, रंडी देखिए कितनी गैरतमंद थी, रंडी ने कहा कि हम नहीं जाते पीर के सामने के, क्यों कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, तो पीर इतना बेशरम है। जामिन अली जलालाबादी कह रहा है, ये लिख कौन रहा है, ये लिख रहा है आसिक इलाही मेरठी देवबंदी, कह रहा है भी तुम घबराती क्यों हो, करने वाला तो बहु, कराने वाला कौन, वो तो खुदा है माज़अल्लाह। ये हवाला नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहें। इसको दिखाइए, वो भी लिखा देता हूँ। ये अली इफ़ादतुल यौमिया, मामू की बहार, मामू की जमात लेके जाते हैं, मामू ने कैसा कैसा क्या क्या कहा है। तो आज के मौलाना साहब थोड़ा इधर भी गौर कर लें, ईमान है तो सब कुछ है, कब्र में जाना है, आका को मुँह दिखाना है, सिर्फ जुबानी आका जुबानी नहीं, मैं आपको दिखा के भेजूंगा आपके ऊपर। हाँ जी, दिल से आका को मानिए जी, तो ये दिल से कहाँ मानना है, ये लिखिए। दूसरा ये हवाला नोट करिए आप, किताब का नाम मलफूजात हकीमुल उम्मत लिखिए। नहीं, ये बाइस्ती जेवर का सबब। अरे भाई वही तो बता रहा हूँ, लिखिए ना, बाइस्ती जेवर का आपको दूसरा नाम ही नहीं पता है, जब भी तो आप कह रहे हैं। मलफूजात हकीमुल उम्मत, मुसन्निफ का नाम अशरफ अली थानवी, ये छपी कहाँ से वो भी लिख दिए, मकतबे दानिश देवबंद 24 से इसका पिन कोड, सफ़ा नंबर 322, ये भी नोट कर लीजिए। किस्त नंबर 3 है, जिल्द नंबर भी 3 है, हिस्सा नंबर, किस्त नंबर 3, जिल्द नंबर भी 3। लिखते हैं कि एक शख्स अपनी माँ से बदकारी किया करता था, माअज़ल्लाह। किसी ने कहा अरे खबीसी क्या हरकत है, तो वो कहता है कि जब मेरा पूरा ही अंदर था, थोड़ा जूस चला गया, उसमें क्या बुराई है। तो थानवी साहब बोले वो ये हुक्म भी अकलियात में से हो सकता है, माअज़ल्लाह। हाँ वंशराम आ रहे हैं। अब हवाला नोट कर लीजिए पूरी ऐसा। और ये भी जो बताया, ये इसी जो दूसरा कहा था गू खाया करता था, वो भी इसी हवाले पर मिलेगा आपको, सफ़ा नंबर 322, ये किस्त नंबर 3, जिल्द नंबर मलफूजात हकीमुल उम्मत। ये नोट करना चाहिए, ये भी कर लें। मौलवी इलियास की नानी की कहानी को उनकी किताब की जुबानी नोट कर लीजिए आप। मैं चाहता हूँ कि आप इधर भी थोड़ा ध्यान दें मौलाना साहब। बेटा वहाँ जाना है, वहाँ चला जा भाग के, देख इधर वाली, समझ गया, जहाँ वो ड्रेस बनाई थी।
जल्दी जा बात के हाँ जल्दी जा पड़ा जिल्द नंबर 3 बताइए। जी। और ये गुस्ताखी नहीं है और है ना ये देखिए शहीद करो किताब का नाम शहीद करबला का दिफा। कोई भी लिख अरे सकता चेक है, करिए आप मैं चेक करूंगा। तकबतुल ईमान किताब एक ही मैं चेक करूंगा, चेक करने के बाद में फुल आपको मेरे करूंगा। सुनिए मौलाना साहब, तकबतुल ईमान किताब में लिखा रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। अगर ना लिखा हो जो चोर की सजा अपने कारखाना देख लिया, जहाँ बुलाएंगे वहीं आ जाऊंगा। अगर ना लिखा हो उसी में लिखा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, उसी किताब में पूरी सुन लीजिए, उसी में लिखा नबी हमारे बड़े भाई हैं माज़अल्लाह, उसी में किताब में लिखा है कि माज़अल्लाह नबी की कब्र में क्या होगा उनको नहीं आपको मिले, आप मेरे पास आइएगा, मैं आपके देवबंद मदरसे की किताब यहाँ पे दिखाऊंगा बाकायदा छपी हुई। अरे आपको ले जाऊंगा, ले चलूंगा इंशाल्लाह। तैयार है? बिल्कुल, हम तो तैयारी रहते हैं क्योंकि हम आला हज़रत वाले हैं ना, बख्तियार काफ़ी वाले हैं। हम तो चाहते हैं कि सब बुजुर्गों के रास्ते पर आ जाए वापस जहाँ पर थे। ये नई नई टोलियाँ सबकी बंद हो जाएंगी। कितना देख ही रहे हैं आप, कितना मुसलमानों के पीछे कैसे लोग पड़े हुए कितना हैं। चल रहा जैसे आदत है, सब तो देख ही रहे हो। चल रहा आदमी, हाँ सब तो देख ही इसलिए रहे ऐसा हो रहा है। सब तो देख ही रहे हो। जब अपनी कमी है, दूसरे की कमी नहीं जब है। जाकिर नालायक ने कहा नबी को मानना हराम है, तब कितने जुलूस निकले, नहीं निकले ना, गाड़ी वाले के लिए नहीं निकले और इसके लिए निकले। किसी को गाली देना भी जुर्म है, नहीं देना चाहिए गाली, इससे बड़ी क्या गाली होगा कि नबी को मानना हराम है माज़अल्लाह। किसी को गाली देना भी जुर्म है। गाली देने के लिए हमारे नबी कहा है, उनको सबको आप मौलाना कह रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है वल्लाह, मुझे बहुत अफसोस है कि आप आलिम हैं, मौलाना आलिम है, वो सब आलिम। फिर आप आलिम नहीं, फिर आप भी हदीस पाक की रोशनी में घूमते शैतान। मैं करूंगा, तहकीक करिएगा, हिफ्जुल ईमान की भी तहकीक करिएगा। मैंने लिख लिया है। हाँ इसकी तहकीक करिएगा, ये इसकी भी तहकीक करके हिफ्जुल ईमान की भी तहकीक करिए, जिसमें नबी के इल्म का भी जानवर तरह कहा गया। ये जो पहले इसकी एक को तहकीक तो करूँ जी, तो पता चल जाएगा आपके। जी जी जी। आप कहीं कर रहे हैं, कुछ आदमी इधर सुनिए, बुरा नहीं मानिए, कुछ आदमी नहीं, ऐसे हैं जो लिख बुरे लेते हैं कुछ से कुछ। अच्छा, लिख लिया कुछ से कुछ बोल। मैं ओरिजिनल किताब दिखाता हूँ आपको, ओरिजिनल किताब अभी दिखाता हमारे हूँ। पास उतना टाइम नहीं है अभी। जब आइए, जब आने से पहले फोन कर दीजिए, आपका original किताब। ले लिए है इंशाल्लाह। मैं खुद इंशाल्लाह फोन करूंगा। ठीक। और मैं इधर आते रहूंगा। ठीक, वल्लाह लेने से पहले लास्ट है, फिर आऊंगा मैं। जी जी जी, मेरी कोशिश है, फिर आऊंगा। मैंने तबलीग करी है कि शायद आप बड़े हैं और साथ अरे आप ही बड़े रही, हम तो छोटे हैं। नहीं, जो बात अरे है, आप ही बनिए, हमको जो बात बड़ा है, नहीं बनना है। जो बात है, हमने किसी को गाली देना है। हर नबी के उम्मती पर हर फर्ज आदमी जो है, है, सुनिए, हर नबी के उम्मती पर फर्ज है कि अगर उसका कोई बड़ा हो या छोटा अगर भटक रहा है, अगर उसको सही पता है तो तहकीक करने का हक आपको है, आप ढूंढिए उसको, और ढूंढने के बाद अगर है फिर तौबा करिए, रुजू करिए, बचिए इन सब चीज़ों से, ऐसे जमातियों से बचिए। यही मेरा कहना है। रुजू करना पड़ेगा अगर नहीं होगा। और जब आपको किताब नहीं मिलेगी तो देवबंदियों के मदरसे में चल के आपको अगर ये चीज आप जो बोले हैं, अगर इंशाअल्लाह हमें करना नहीं पड़ेगा, ये इंशाअल्लाह हमें करना नहीं पड़ेगा, क़यामत तक मेरी दलील को गलत नहीं साबित कर सकते। किताब ना मिले तो मुझे बताइए, मैं फोटो भेज दूंगा ओरिजिनल। नहीं, मैं खुद वहाँ से किताब, इनकी किताब तो लिखी होगी। नहीं मिले, खाना में तो नहीं मिले तो मैं बता दूं कहाँ मिलेगी। जहाँ मस्जिद के देवबंदियों के मदरसे हैं, वो मदरसे खुद खाने हैं बहुत बड़े बड़े, आप जाइए वहाँ से किताब नहीं खरीदिए, चेक करिए।